بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کو اس مقصد کے لیے زحمت دی گئی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ صوبہ سرحد یا صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم سے وابستہ سیاسی جماعتوں سے بھی میری مشاورت ہوئی ہے اور ہم الیکشن کمیشن کے اس اقدام پر اپنا رد عمل دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا دو ٹوک واضح اور غیر مبہم موقف چلا آ رہا ہے کہ ہم 2018 کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور ان نتائج کی بنیاد پر جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں وہ ناجائز اور جعلی ہیں۔ جو حکومت خود دھاندلی کی پیداوار ہو اس کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کیسے قبول کیے جا سکتے ہیں؟ ہر چند کے الیکشن کمیشن یہ کہے کہ ہماری نگرانی میں ہے، لیکن ارباب اقتدار ہر صورت پہ مؤثر ہوتے ہیں اور وہ اپنے زیر اثر انتظامیہ کو الیکشن میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور سرکاری وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے خود یہ کہا ہے کہ ہم ووٹر ویریفیکیشن کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ووٹر لسٹ مشکوک ہے، اسی لیے اس کو ویریفیکیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ پھر اس طرح مشکوک انتخابی فہرستوں کی بنیاد پر الیکشن کرانے کا کیا معنی؟ ایسی صورتحال میں عجیب ملغوبہ یہ ہے کہ ولیج کونسل وہ غیر جماعتی ہوں گے اور تحصیل الیکشن وہ جماعتی بنیاد پر ہوں گے۔ ایک ہی بلدیاتی نظام ہے، اس بلدیاتی نظام کے تحت ایک سطح جو ہے وہ غیر جماعتی ہے اور دوسری سطح جو ہے وہ جماعتی بنیادوں پر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے ولیج کونسل میں ان کو پھر اختیار ہوگا، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں 24 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ جو بلدیاتی ممبران جس کا صرف کام اس محلے کی خدمت ہے اور اس محلے میں اس کو فنڈ چاہیے، حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی، اس کا تو معنی یہ ہے کہ تمام ممبران کو وہ اس مجبوری کے تحت وہ پی ٹی آئی میں شامل کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے ہیں۔ تو اس لحاظ سے
ہم اس بلدیاتی الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے ماہرین قانون سے بھی مشورہ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کیا جا سکے اور براہ راست ان کے سامنے اپنے تحفظات پیش کیے جا سکیں، تاکہ اس سے آگے پھر ہم مزید قانونی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں رہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنے آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی مشورہ کریں گے، ان کے مشورے سے پھر ہم مزید آگے بڑھنا ہے۔ فوری طور پر اس سے وابستہ ایک اہم مسئلے پر کچھ بات کرنا بالکل ناگزیر ہے کہ تحریک لبیک ان کے کارکن اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کا مطالبہ صحیح ہے یا غلط، لیکن ان کا جو بھی مطالبہ ہو اس کے لیے احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے، ان کا قانونی حق ہے۔ پہلے بھی لاہور میں ان پر جو تشدد کیا گیا اور انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں اس میں، اور اب دوبارہ جب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں تو ان پر لاہور میں تشدد کیا گیا، ابھی راستے میں ہیں وہ، انہوں نے دوبارہ اگلے مرحلے کا آغاز کیا ہے، تو انتہائی ظالمانہ انداز کے ساتھ ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ کوئی لاہور کے واقعے میں تو 10 سے 12 تک کہا جاتا ہے کہ شہید بھی ہو چکے ہیں ان کے، اور اب دوبارہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس میں بھی کافی لوگ زخمی ہیں۔ یہ کون سا اخلاقی رویہ ہے کہ خود عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی تو 126 دن کا دھرنا ڈی چوک پر دیتے رہے، اور اب اگر یہ لوگ آتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، کس بنیاد پر آخر؟ اور قانون کی نظر میں یہ فرق، اتنا بڑا فرق کیوں؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف ان کا مظاہرہ تھا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن عمران خان کے خلاف مظاہرہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور وہ قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم حکومت کے ان ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے احتجاج کا حق دیا جائے اور معاملات کو قانون کے دائرے میں شائستگی کے ساتھ حل کیے جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ چونکہ ایک مذہبی لوگ ہیں تو مذہبی لوگوں کو آپ نشانہ بنائیں اور دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ لوگ تو انتہا پسند ہیں۔ کوئی انتہا پسند نہیں، ایک مطالبہ ہے ان کا اور اس کے حق میں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کا حق جمہوری ماحول میں ہر پارٹی کو ہوا کرتا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے 2-4 دن پہلے آپ کے مشاور سے بھی ہم نے گفتگو سنی، باقی جماعتوں سے بھی آپ نے رابطہ کیا، کیا باقی جماعتیں بھی آپ کے اس موقف کی طرف آ رہی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان میں حصہ نہ لیا جائے، کیونکہ یہ جن کے ضائع میں حصہ لینا وہی غلط ہیں؟ بائیکاٹ وہ ہمارے ذہن غور ہے، ہم بائیکاٹ کریں گے بالآخر، اور کوئی راستہ اگر نہ ہوا تو پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات منسوخ کر دیے جائیں۔ ہم قانونی راستے سے بھی اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ بالفرض ہم پر امپوز کرنا چاہتے ہیں اور ایک جعلی حکومت کی چھتری کے نیچے، تو پھر یہ شاید ہمارے لیے قابل قبول۔ مولانا یہ بتائیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کل آپ کا فیصلہ آیا تھا، جاری ہوا تھا کہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اپوزیشن کو قیادت ملتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے وزارت اعلیٰ، مطلب اگر اپوزیشن کو ملتی ہے تو اپوزیشن کو وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بھی کلیئر کریں، اور دوسرا اگر اس وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، حکومت میں شامل ہونا الگ بات ہے، ووٹ دینا وزیر اعلیٰ کو الگ ایشو ہے، یہ تھوڑا سا یہ باتیں جو ہیں، جو جتنا میں فیصلے میں لکھ چکا ہوں اب تک تو اتنا ہی ہے، اور پھر جتنا جتنا معاملات آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے۔
मौलाना साहब ये बताइएगा, देखिए वज़ीर आज़म ने कहा है कि सख्ती से निपटा जाए और इनसे रास्ते क्लियर कराए जाएं और किसी भी सूरत टीएलपी को जेहलम जो दरिया है उसको क्रॉस ना करने दिया जाए, रेंजर्स तैनात कर दी गई। तो क्या इस तरह मुल्क में जो पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं, अभी तक उनकी जानब से किसी किस्म का कोई जो सरकारी लागत को नुकसान नहीं पहुँचाया गया? अगर वो इतना जायज़ नाजायज़ को देखते हैं तो ख़ुद एतराफ़ कर ले कि मैं ख़ुद एक नाजायज़ हुक्मरान हूँ और मुझे रास्ते से हट जाना चाहिए। तो हम तो उसको रास्ते से हटाने के लिए मैदान अमल में हैं, और जब हमारा मुतालबा ही एक है कि आम इंतखाबात कराए जाएं, तो फिर आम इंतखाबात के बाद हम कोई बल्दियाती इलेक्शन कबूल नहीं कर सकते। और जाली हुक्मरान जो है उनकी यही कि न मुल्क को मईशत दे सके, न आम आदमी को रोज़गार मुहैया कर सके, और पता नहीं 50 लाख घरों का उसने ऐलान किया था, वो 50 लाख घर कहाँ हैं? वो 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, वो किधर हैं? वो 300 डेमों की बात की थी, वो किधर हैं? पूरा मुल्क ग़रक़ाब हो गया है और ज़मीन पर बैठ गया है मुल्क की मईशत। और अब भी ये लोगों से कहते हैं कि उनको मत आने दो इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि यहाँ नाजायज़ तौर पर तुम बतौर हुक्मरान बैठे रहोगे और कोई पाकिस्तानी शहरी यहाँ आकर अपने एहतजाज नोट नहीं करा सकते। मौलाना ये बताइएगा कि आपने जो बलूचिस्तान के हवाले से बात की, ज़ाहिर है आपकी बातचीत सबसे चल रही है, आपके वहाँ इत्तेहादी भी हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो भी फैसला करेंगे आप सारे इत्तेहादी जो हैं वो मिलकर करेंगे या अलग अलग फैसला? यही तय हुआ है कि जो भी अगला फैसला होगा, यानी एक फैसला तो तय है कि हमने इन लोगों के साथ हुकूमत नहीं बनानी, हम हुकूमत यही के साथ या बाप के साथ? बाप के साथ। बेटे तो बाद में अगर अंदर आएगी तो और मामला ख़राब करेगी। महंगाई है, शिद्दत तक पहुंच चुकी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हर चीज़ 2 गुना 4 गुना महंगी हो चुकी है। इसके ऊपर जो है हुकूमत के हवाले से आपको क्या समझते हैं कि वो कहते हैं कि मईशत बड़ी अच्छी जा रही है। दूसरा ये कि आपने फैसलाबाद में भी पीडीएम के जलसे में तकरीर की थी वज़ीर आज़म के तोपों के हवाले से, और दूसरी जगहों से आपने बात की है, लेकिन इशू ये है कि जिस साथी ने इन तोपों की तफसील हुकूमत से मांगी थी और हुकूमत उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गई, उसको याद में की जा रही है, उसके घर में बंदे जा रहे हैं और निगरानी हो रही है मुसलसल मूवमेंट की। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या वज़ीर आज़म से तोपों की तफसील मांगना एक जुर्म है? और ये साहबी खुद यही है तो सही। नहीं, पहले नहीं, इसको क्लियर होने दें, इसको क्लियर होने दें। जवाब दे जी दीजिए। मौलाना। तो आपके सवाल का पहला हिस्सा क्या था? महंगाई का तो ज़ाहिर है महंगाई तो एक आप जानते हैं कि इस वक्त पीडीएम जो है पूरे मुल्क में आवाम की शराकत के साथ सड़कों पे है। महंगाई के ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज मुल्क के अंदर हो रहा है, और रोज़मर्रा के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि मुल्क के दूर दराज इलाक़ों में रोज़ाना के हिसाब से मुजाहरे हो रहे हैं और तसलसल के साथ हो रहे हैं। और इस पर ये आवाम का हक़ है, क्योंकि मुल्क में रहना है तो 2 चीज़ें मुल्क को देनी होंगी, एक अमन और एक रोज़गार। जो हुकूमत अमन भी न दे सके और इस तरह लोगों को मारे जिस तरह के इस वक्त मुजाहिरीन को मारा जा रहा है, और मईशत भी बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दे, फिर ऐसे लोगों को हुकूमत करने का कोई हक़ हासिल नहीं है जी। तो इस एतबार से जिन सहाफ़ियों को धमकाया जा रहा है, मेरे ख़्याल में इस तरह ये सब लोगों को चोर कहते हैं, चोर चोर, और ख़ुद इतनी घटिया चोरियां करते हैं कि जिसके बाद मेरे ख़्याल में उनको अगर हया है तो पब्लिक में आए, फिर अपनी वजाहत पेश करें। ये क्या मतलब कि सहाफ़ियों के घरों में जाएं, तुमने ये बात क्यों लीक की है, क्यों आपने इसको पब्लिक किया है, और फिर उनको डराएं, उनको धमकाएं। इस तरीके से तो बजाय इसके कि आप दूसरों पे दबाव डालें, ख़ुद इंसान बन जाओ ना और सलीके का काम करो। मौलाना साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं या उनकी पार्टी के सिविल अस्करी ताल्लुकात जो हैं वो तारीख के सबसे बेहतरीन है माजी की निस्बत। तो एक तरफ ISPR ने 6 अक्टूबर को एक नॉमिनेशन की है और वज़ीर आज़म वही जो नॉमिनेशन है इंटरव्यू करने के बाद नई समरी पे वो ले गए हैं 20 नवंबर पे। इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये शायद कुछ फेस सेविंग के लिए उन्होंने कुछ टाइम दिया है, 10-15 दिन का, बस इतना ही चेहरा है कि 10-15 दिन में उसको सेव किया जा सकता है। कोई ज़्यादा लंबी बात उसके लिए नहीं है। फैसला वही है जो हो चुका है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि
जिस वक्त एक आदमी इन सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल होता है तो वो बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मातहत होता है और उसकी खिदमत और सर्विसेज का तयन आर्मी चीफ करता है। ये कानून की बात है, मैं कोई बाजवा साहब के बारे में नहीं कर रहा, मैं हर एक के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ। हाँ, अगर वो फौजी ना होता, रिटायर्ड होता या एक सिविलियन होता तो फिर एक बात की जा सकती थी कि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आता है और फिर वज़ीर आज़म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उसको जाना चाहिए। उसूली तौर पर इस लेफ्टिनेंट जनरल की खिदमत का तयन जो है वो आर्मी चीफ ही करता है और अब भी मैं समझता हूँ कि उन्हीं का हक बनता है। मौलाना साहब ये बताइए कि 3 साल हो गए हैं, अपोजिशन मुजाहरे भी कर रही है, जलसे भी कर रही है, बजाय इसके कि आवाम को रिलीफ मिले, प्रेशर हुकूमत पर आए, लेकिन दिन ब दिन जलसों जुलूसों के बावजूद अपोजिशन क्यों नाकाम हो रही है आवाम मजबूर करने के लिए हुकूमत को कि आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाए? क्या ये इलेक्शन मुहिम आप चला रहे हैं या आवाम के लिए आप जो है वो इलेक्शन की बात, मुहिम की बात तो आप तब करते जब हमने आगाज़ अब से किया, लेकिन अगर हम 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई से मैदान में हैं और मुसलसल एक मौक़िफ़ लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं तो फिर इसको हमारी तहरीक का तसल्सल समझें। हम आवाम की मुश्किलात का इदराक रखते हैं, उसको समझते हैं और ज़ाहिर है कि जब आप एक ही दिन में 13 रुपये और फिर 24 रुपये का जंप मारेंगे तो आम आदमी पर तो जैसे पहाड़ गिर जाएगी। और अगर सियासतदान मैदान में नहीं आएंगे, हिज़्ब इख्तिलाफ मैदान में नहीं आएगा, आवाम का मुकदमा वो नहीं लड़ेंगे तो फिर कौम तो मायूस हो जाएगी कि हमारे लिए कोई बात करने वाला नहीं है। लिहाजा हमने अपनी पब्लिक को तन्हा नहीं छोड़ना, उनको मायूस नहीं होने देना और मैदान अमल में रहना है। जब आपका एक मौक़िफ़ आएगा, जो ही तब्दीली आएगी तो नए लोग जो हैं वो उसी नज़रिए की बुनियाद पर मुल्क को दोबारा उठाएंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि हम हुकूमत को गिरा नहीं सके या हुकूमत अभी तक किसके सहारे चल रही है, वो सारे अपनी जगह पर। मुश्किल और चैलेंज वाली बात यह है कि अगर हुकूमत अपोजिशन के हाथ में आ जाएगी तो इसने इतना मुल्क को बिठा दिया है कि इस मुल्क को दोबारा उठाना एक बड़ा चैलेंज होगा। मौलाना साहब, जैसा कि बल्दियाती इंतखाबात की आपने बात की कि तस्लीम नहीं करते, पीडीएम की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? आपने रब्ता किया? मैं उनसे मशवरे की बात कर रहा हूँ, ये बात आपसे। तो इसका क्या आपके ये साहब के किताब में जैसे आसमा शिराजी है, ताजिर जो है ना वो टैक्स की किताब में है, सियासतदान साहब के नाम के किताब में, तो आप क्या समझते हैं कि जो बलूचिस्तान में तब्दीली आई स्कीम के हवाले से, ऐसे अगर वफाक में पीएम से आ गई तो क्या इनाउंस के लिए आप पीपल्स पार्टी से बात कर सकते हैं? देखिए, एक है आपका उसूली मौक़िफ़, एक है हादसात। तो हादसात मौरूज़ी माहौल के ताबे होते हैं। वहाँ पर उनकी अपनी पार्टी बगावत कर गई, उनके लोग अपोजिशन में आकर बैठ गए, तो जाहिर है कि जब अपोजिशन होती है और हुकूमत ही लोग टूट कर अपोजिशन के बेंचों में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हम तब्दीली लाना चाहते हैं, तो फिर ये तो नहीं कह सकती कि उस वक्त फिर अपोजिशन हुकूमत का खड़ी हो जाए, यानी ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो इसी तनाज़ुर में हम आगे भी देखेंगे और सोचेंगे कि क्या जो बेहतर होगा वही करेंगे। पंजाब में भी हुकूमत से लोग टूट के अपोजिशन में शामिल हो सकते हैं? ये तो मुझे इल्म नहीं है, मैं तो आप कह रहे हैं हादसा होता है ना जी। अब क्या पता पहले से आप कि गाड़ी आपकी जा रही है वो हादसा करेगी या नहीं मौलाना करेगी। साहब, माजी में पीडीएम की 2 जमातें जो थी वो ये इल्ज़ाम लगाते हुए, वजूहात जो भी थी वो एक और बात है, साइड पे हो गई कि ये 2 जमातें हम पे इम्पोज कर रही थी कि लॉन्ग मार्च तब होगा जब आप इस्तीफे देंगे। ये इनका सख्त फैसला था, इज्तिमाई फैसला नहीं था। ये जो बल्दियाती इंतखाबात वाली बात है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आप बकिया जमातें इकट्ठी करके चल रहे हैं, पता चले कि इसमें से भी स्लिप कर जाएंगे। हज़रत, मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि बाकायदा राय तकसीम हुई और 10 जमातों में 9 जमातों की राय एक तरफ थी और सिर्फ एक पार्टी की राय एक तरफ थी। फिर ये बात आप न कहें कि आप उस वक्त कोई तय नहीं था, बाकायदा। जी हाँ, वो साथ थी, वही तो एक बात कर। जहाँ तक इस्तीफे की बात है, इस्तीफों की बात में हज़रत एक ही पार्टी तनहा थी और ये बात कहना जी कि इत्तेफाक राय नहीं था या मसला तय नहीं था, सब कुछ तय था। और अब बल्दियाती इंतखाबात पे मैं जिस खदशे का मैं इज़हार कर रहा हूँ उसी तरह तो मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि आप बाल के खाल खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं मुशावरत के बाद आपसे बात करता हूँ।